ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੀ? मेरा नाम रॉबिन मंगला है जी। साडी कंपनी है गर्ग रियल्टी इंफ्रा प्रमोटर्स LLP। ये मेरे मामा जी है, पार्टनर है। ये मेरे दोस्त भी हैं, साढ़े सीए भी हैं, सलील यादव। ठीक है जी। मामला ये है जी, एक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ। ਉਹ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਲਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫਲੈਟ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ 2 ਤੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ SHO ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਠੱਪਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਲੈਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਿਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਲਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਫਲੈਟ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 12 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏਗਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਂਦੇ ਖੋਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਪਰੂਵਡ ਮੈਪਸ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 6/4/2023 ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਐਜ਼ ਪਰ ਮੈਪ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੋਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ, EO ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਵਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਲਲਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਦਾ ਲਲਿਤ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਲਿਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਾਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਮਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਲਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ SHO ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ।
मैं उसे नहीं जानता, पर मैं इन्हों कहा भी तू फ्लैट लेता है, तू फ्लैट लेना ले ले, बकाया पेमेंट देनी है, काम तू आप कराएंगा, काम नहीं ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ क्योंकि तेरी पेमेंट ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਡਿਊ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ पेमेंट ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ। हाँ भाई रोबिन, राम राम। हाँ जी राम राम जी। और कैसा है? बढ़िया, आप सुनाओ। मैं कह ये स्टाम्प ड्यूटी वगैरह कम हो रही है, ये करवा देता, कैसे करेगा? वो आप देख लो कैसे कर रहे हैं। स्टाम्प ड्यूटी कम हो रही है, वो तो हुई है अभी 2-4 दिन पहले हुई है, 5 दिन पहले। हाँ नहीं, मेरे तो आज पार्क में बात चली हुई थी, मेरे को तो वहां पता लग गया कि भी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह कम होगी, 2% कम हुई है। हाँ कुछ ऐसे बता रहे थे। हाँ मैं जो रस भी पढ़ रहे होगा वैसे। देखो रश का मेरे को पता नहीं, मैं ऐसे आपको गलत बात बोलूं कोई, पर अभी चलो सुनने में अपनी तो ये आया है कि अपनी जो 2% फीस लगती है वो भी कम होगी। और तो कम क्यों होगा, और तो नहीं कम होती। अभी तो स्टाम्प ड्यूटी कम करी है ना, एक फीस लेती थी सरकार बिना बात फीस भी कम हुई है बता रहे हैं। अरे सुन तो लो, एक फीस लेती थी बिना बात की सरकार, तो हाँ। फीस शायद खत्म ही कर देंगे ये। वो कब खत्म करेगी? 31 मार्च से पहले पहले इन्होंने सारा सिस्टम बनाना है ये। अच्छा, मतलब 31 मार्च तक इनको पैसे इकट्ठे करने हैं ना, हाँ हाँ तो मतलब वो भी उम्मीद है पूरी। कल ही मेरी बात हुई थी परसों बंदे से, हाँ हाँ वो कहता कह रहा भैया आवाज आ रही है कि शायद ये भी कम हो जाएगी। बल्कि हमने बंदे के कोई बंदा था हमारा, उसने हाँ। जमीन ली थी, उसने बेचारे ने रजिस्ट्री करा ली पहले, पर हालांकि उसके चलो दूसरे पैसे बच गए फीस वाले, स्टाम्प ड्यूटी वाले नहीं बचे। अच्छा जी। स्टाम्प ड्यूटी भी कम हुई है, 2% टोटल कम हुआ है, उम्मीद 4% की है। फिर तो खर्चा ही कुछ नहीं रह जाएगा, 3.5% रह जाएगा सारा, 3%। बात ये है आगे का तो खैर होगी या नहीं होगी, बस फिर करा लो, बस फिर क्या पता। माना, कौन दिक्कत है, करा लो। बात ये है, देख मेरी बात सुन रोबिन यार, 1 लाख रुपए तो तू भी कह रहा था, ये पठानिया वाला भी हुआ है केस तो। 1 लाख सुन मेरी 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 बात सुन, तू कह रहा था भी आप जितने एडजस्टमेंट करवाओगे फ्लैट वालों की, लाख रुपए लेते रहना। आप तो उसके लिए मना कर रहे थे। मैं मना कर रहा, मैं तो आगे भी मना करूंगा। सुनो मेरी बात सुनो। अब मैंने पता क्या है, मैंने भी आपका केस यही सोच के तो निबेड़ा भी, जब आप इतना खुल के ऐसा है, मेरी बात सुन, मेरी तो सुन लो पूरी। हाँ बोल भी। मैंने भी तो आपका यही सोच के निबेड़ा, जब आप इतना खुल के कह रहे हो भी नहीं यार मैंने किसी में कुछ नहीं करना, तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैंने भी तो आपका खुल के निबेड़ दिया। नहीं निबेड़ दी, मेरी बात सुन। स्टाम्पों के पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, मैं समझ लगाऊंगा। देखो मेरी बात सुन रोबिन, मेरे को बात कुछ नहीं है। वहां से आप डीएसपी साहब के दफ्तर भी गए थे, मैंने उनको भी स्पष्ट बोल दी थी, वो कह रहे हैं बात तो ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा फोन भी नहीं आया कोई। नहीं मेरे को उन्होंने, मेरी बात सुनो, जब हम कमरे में गए थे ना, उस कमरे में मैं बोला जी देखो जी रजिस्ट्री इसने करानी है, खर्चा बर्चा सभी ने बोला हाँ यही देगा जी, आप टेंशन ना लो। ऐसा करते हैं आप कल 11 बजे का टाइम रख लेते हैं वहां पे, आज तो मैं हूँ बाहर। अच्छा, कल 11 बजे का रख लेते हैं, जैसे साहब कहेंगे वैसे कर लेंगे। साहब के चक्कर में ज्यादा क्यों इधर उधर करे फिर बात यार। नहीं आप कह रहे हो मैंने दिक्कत नहीं है, तो सही, उससे कैसे कह देगा मतलब वो ये बात। हाँ नहीं मैं क्या किया आया था, मैं कहा जी रजिस्ट्री को कह रहा है सब खर्चे ये देगा, बोला जी कोई नहीं नाम लिखवा, मैं बोला जी मैं तो आपकी हाँ। मेरी बात नहीं समझे, आप कह के आए थे, मैं तो उनसे पूछूं। मेरी बात सुन रोबिन, सुन मेरी बात सुन। एक्चुअल में क्या है कि मेरे पे और भी मतलब लेटर वगैरह आ रहे हैं, मैंने इनके सबके जवाब सुनो, क्लियर तो मेरी बात सुनो, बड़ी स्पष्ट सी बात सुनो। मेरे को ये लेटर वेटर वाली बातें आपस में ना करें, मन्ने तो देने पड़ेंगे ना। बात ने समझा भी मेरा केस सेटल हो गया, बात खत्म, मैं चक्कर में पड़ता। अभी भी सेटल नहीं हुआ ना जी, फिर तो भगवान भी नीचे आके सेटल। मेरी बात सुनो ना, वो ये रजिस्ट्री करवा दे, क्योंकि ऐसा है कि मैंने घर बोल दिया, रिश्तेदारों को बोल दिया। जेब से पैसे खर्च के कराऊं, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कोरे शब्दों में कर रहा हूं, मेरी जेब से 1 रुपया नहीं खर्चूंगा जी, ना मेरे बनते हैं। कोई भी बंदा कह देगा, पंचायती बंदा की मेरे बनते हैं। तो एक बात सुनो, तू मेरी बात सुन, तो 1 लाख रुपए तो मेरे ये पठानिया वाले हैं ही ना। फिर लाख रुपए पठानिया से फ्लैट खरीदा है हमने, दिया नहीं है उसको। किसने? पठानिया से फ्लैट हमने वापस लिया है और पैसे दिए उसको 18 लाख से ऊपर। पैसे मैं आपकी बात समझ गया, उसको सेट तो मैं करके लाया था ना यार, सेट तो आप करके लाए थे, मैंने उसको पैसे फालतू दिए। फालतू कहाँ दे दिए? फालतू ही दिए और क्या, 18 लाख रुपए उसके पक्के में 25 लाख रुपए दिए उसको। हेलो, देख ले रोबिन भाई, नहीं मैं किसी बात से पीछे नहीं हट रहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कल 11 बजे का टाइम रख लो वहां का। चलो अगर वो बोलेंगे कि हाँ ये रोबिन आप करना है, मैं वहीं 1 मिनट में हाँ भर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ठीक है, 11 बजे का रख लेते हैं कल 11 बजे का। ठीक। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़। और इस वक्त हूँ मैं ज़ीरकपुर प्रेस क्लब में और मेरे साथ है रॉबिन जी। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और मुद्दा काफ़ी गंभीर है, हम जानकारी ले लेंगे रॉबिन जी से ही क्या कुछ मामला है। सर, कॉन्फ्रेंस रखने की नौबत कैसे आ गई सर? कॉन्फ्रेंस रखने की नौबत ऐसे आई मैम, जैसे आजकल शहर में कुछ लोगों ने ब्लैकमेलिंग का अच्छा बिजनेस चलाया हुआ है और स्पेशली एक मतलब स्पेसिफिक बिल्डर्स को ही वो लोग ब्लैकमेल करते हैं।
और हमारे भी एक प्रोजेक्ट है पीर मशल्ला में, रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम के नाम से। ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, बंद पड़ा प्रोजेक्ट था, हमने 2022 में ख़रीदा था ये प्रोजेक्ट। तो जब ये प्रोजेक्ट लिया, हमारे को जो यहाँ का ब्लैकमेलिंग सिस्टम है, उसका जो मेन सरगना है, उसने काफ़ी बार ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करी। सर नाम बता सकते हैं आप? मैम नाम मैंने पहले भी जैसे बताया, जो खोती समाज सेवी है शहर का, जिसने हमारे प्रोजेक्ट की थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी लॉन्च करी कि इनके प्रोजेक्ट ये बन रहा है, ये बन गया है। हमारे प्रोजेक्ट के बाहर खड़े होके खुद उसी का वो चैनल है, उसी में वो पत्रकार है, उसी में वो न्यूज़ पढ़ता है और उसी में वो समाज सेवी भी है। और वो कह रहा है कि ये 6 मंजिले पास है, ये 8 मंजिले बन गया, ये है वो है। वो 10 दिन या 15 दिन पुरानी है, महीना होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरे नक्शे पड़े हैं जी, ये 2023 अप्रैल के पास है। इतना सफ़ेद झूठ बोल के लोगों को अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं कि बिल्डर किसी तरीके से पैसे दे दे। जब चैनल खोला गया तब मेरे से ऐड के नाम के पैसे मांगे गए, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। ऐड मैं दे देता, ऐड देने में कोई इतना फ़र्क नहीं होता, बट जब आप ब्लैकमेल करके किसी से पैसे मांगोगे कोई कुछ नहीं देगा, जो मैं सोचता हूँ। कितने टाइम से आप प्रताड़ित हो रहे हैं इस मामले में? मैम काफ़ी देर हो गई, 2022 से तो हम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम 2020 से ही रहे हैं। पर 20 से जब हो रहे थे वो छोटा मोटा था, वो बियरेबल है, पर अब कुछ अनबियरेबल है, टोटली अनबियरेबल है। और अब इसके साथ एक हमारा तो नहीं, पुराने बिल्डर का अलॉटी जिसको उसने फ्लैट बेचा था वो भी मिल गया है। वो भी इसके साथ मिलके हमें अच्छे से ब्लैकमेल कर रहा है। वो ये चाहता है कि हम उसको, जो उसके 2 फ्लैट पुराने बिल्डर ने दिए थे, वो 2 फ्लैट उसको दे दें। उसकी रजिस्ट्री भी मैं अपने पैसे से, अपनी जेब से करवा दूं खर्च के, और जो उसका बकाया पैसा है उससे वो भी ना लूं। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने थोड़ी देर पहले सुनाई थी, आपको चाहिए होगी आपको भी दे दूँ, जिसमें वो मेरे से पैसे की डिमांड कर रहा है। वो उसकी एक सोसाइटी में पैड है, जो पुराने अलॉटीज़ हैं, उसमें उसने मेरे से 2 लाख रुपए पर बंदा मांगे कि मैं एक को लेके आऊँगा। मैंने खुशी से उसको लाख रुपए पर फ्लैट की ऑफ़र करी, हमारी बात खत्म होगी। पर मुझे कहता है कि मैं नहीं, आपसे लूँगा नहीं। मेरे को लगा कि इतने साफ मन से ही कह रहा है नहीं लूँगा, तो मुझे इसका केस अच्छे से सेटल करना चाहिए। मैंने उससे बोला कि मैं आपसे कोई फालतू पैसे नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप बस अपना तैयार करा लीजिएगा और ले लीजिएगा। वो बोला ठीक है। जब वो चीज़ हो जाती है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उसमें वो कह भी रहा है कि वो लाख रुपए पठानिया वाले हैं, पठानिया जी था जिनका नाम वो ले रहा था, जिनको मेरे पास लेके आया था। मैंने उसको कहा आपने मना कर दिया, वो कह रहा है कि हाँ मैं लूँगा नहीं, पर फिर मेरे को कह रहा है कि लाख रुपए वो भी दे दीजिए। मतलब टोटली ब्लैकमेलिंग है, जिस तरीके से भी कर सकते हैं, जहाँ से मौका मिले वहाँ से ब्लैकमेलिंग कर। तो ऐसे शहर में देखिए, जिस तरीके से रॉबिन जी बता रहे हैं कि इनके साथ काफ़ी समय से 2022 से ही ये प्रताड़ित हो रहे हैं, और अखौती समाज सेवी हैं जिनका नाम इन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी लिया है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो बातचीत की वो भी इनके पास अवेलेबल है। वो भी हम आपको इदम टुडे न्यूज़ के चैनल पर दिखाएंगे, और तब तक हम इनसे और बातचीत करते हैं। रॉबिन जी, इससे पहले कभी आप बहुत टाइम से ज़ीरकपुर में एज ए बिल्डर वर्क कर रहे हैं, लोगों को फ्लैट भी आपने दिया है, तो आप कितने टाइम से इस ज़ीरकपुर में हैं और अभी तक कितने फ्लैट्स जो हैं वो आपने जेन्युइनली जो है वो डिलीवर किया है? मैम ये हमारा फ्रंटली फर्स्ट प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पे शहर में काफ़ी देर से हैं। पहले हमने जैसे कोई एक प्लॉट ले लिया, घर बना लिया, बेच दिया, ऐसे काम था, लैंड्स ले ली, बेच ली। बट ये प्रोजेक्ट के नाम पे अगर हम बात करें, हाई राइज के नाम पे बात करें, ग्रुप सोसाइटी के नाम पे बात करें, तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। ये हमारी एक्चुअली ये जो ब्लैकमेलर्स हैं, इन्हीं की वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट लेट हो गया, वरना हम ये लॉन्च 2015-16 में ही कर देते। लॉन्च इन द सेंस कि उस टाइम जो पुराना बिल्डर था उसको एकदम से प्रॉब्लम आई थी, उस टाइम 1.5 साल हुआ था, उसी टाइम लोगों को घर मिल जाते अगर हम लोग शुरू कर देते। बट इन लोगों की वजह से ही ये जो प्रोजेक्ट है इतना डिले हो गया। अभी भी मेरे को एक परमिशन चाहिए थी, मुझे 8 महीने लग गए उस परमिशन के लिए, जो कि नॉर्मली महीने में मिल जाती है, उसमें अफसर का कोई कसूर नहीं। अब जब इसे पता चल गया कि वहाँ से परमिशन मिलनी है, इन लोगों ने वहीं जाके बैठना ही शुरू कर दिया, लिटरली ये है वो है। तो एक दिन मतलब मैंने कहा सर 1 to 1 बुला लीजिए, 1 to 1 बात हुई, कुछ नहीं निकला। उन्होंने रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट मिली, कंप्लेंट फाइल हुई और मुझे मेरी परमिशन मिली। इससे पहले कभी भी आपको ज़ीरकपुर में किसी पत्रकार द्वारा या किसी समाज सेवी द्वारा, इससे पहले 2014-15 से पहले या 22 से पहले कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके साथ इस तरह से किया हो? ये नई ट्रेड अभी शुरू हुई है जी, पहले नहीं थी ये ट्रेड ऐसी। ये अभी ब्लैकमेलिंग का सिस्टम शुरू हुआ है, और इसको शुरू करने वाला भी एक ही व्यक्ति है जिसका बढ़िया काम चल रहा है। वो पहले जैसे मैं भी हूँ, मेरी भी उसने अपने स्टेटस पे बड़ी बार फोटो डाली होगी, अगर मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देता तो वो स्टेटस से गायब हो जाती। कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी उसने अपने स्टेटस पे फोटो डाली, कंप्लेंट्स दी, हाँ कंप्लेंट्स दी, फिर वो जब वो सेटल हो जाती है फिर वो ख़त्म हो जाती हैं।
ठीक है, बिल्डर को मजबूरी में करना पड़ता है, ये हमारी बिल्डर्स की प्रॉब्लम है। मजबूरी ये होती है, देखिए कोई किराने की दुकान भी करता है, 50,000 रुपये का या लाख रुपये का सामान भी डाल के बैठता है, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ करना पड़ता है अपना व्यापार चलाने के लिए। आपने अभी कुछ कहा कि जैसे सोशल मीडिया पर कुछ आप फोटोज़ डाल देना एंड देन ब्लैकमेलिंग करना, अगर जब आप नहीं जाते हैं, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो वो थ्रेटनिंग जो है, वो रेगुलरिटी जो है उसकी बढ़ जाती है। यही बात आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और इवन की ये थ्रेटनिंग हमारे तक नहीं रहती, ये अधिकारियों तक पहुँच जाती है, अधिकारियों को परेशान करते हैं। जो एक ईमानदार अधिकारी होगा उसको बोलेंगे सर आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, आपने पैसे ले लिया, आप उनके साथ मिले हुए हो। वो उनको बोलेंगे कि हम किस चीज़ की कार्रवाई करें, सर इस चीज़ की कर दो, इस चीज़ की कर दो, परेशान किया जाता है। फिर उसके उच्च अधिकारी को उसकी कंप्लेंट की जाती है, वो अधिकारी परेशान हो जाता है उस प्रेशर से, फिर वो हमें कहने लग जाता है कि यार आप इसको देखो कैसे कर सकते हो। मतलब चौतरफा एक प्रेशर बनाया जाता है कि इन ब्लैकमेलरों के साथ किसी तरीके से आप इसको ख़त्म करें। वो हम तो नहीं करेंगे। सर, ज़ीरकपुर प्रेस क्लब में आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, मीडिया से आपको किस तरह की सहयोग चाहिए? मीडिया से मैं सिर्फ यही एक सहयोग करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप कोई भी जो न्यूज़ खबर प्रकाशित करते हैं ना, एक बार उसका आप सच जरूर जान लें। जैसे एक पत्रकार हैं, साहब पत्रकार करते हैं, उनका मेरे को फ़ोन आया कि सर ये आपके खिलाफ एक ये रिपोर्ट आई है, मुझे पब्लिश करने के लिए बोला गया है। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब पब्लिश कर दीजिए आप। तो बोले कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पब्लिश कर दी, मेरे खिलाफ थी। मैंने कहा सर आप जिस दिन इसको पब्लिश करेंगे, मैं अगले दिन आपसे जरूर ये सवाल पूछूंगा कि भाई साहब आपने पब्लिश करी है, इसका प्रूफ है कोई? तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कि ये देखिए, जिसने मुझे भेजी थी मैंने उसको यही बोला कि इसका प्रूफ है, तो उसका जवाब था नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, पर कुछ एक बुरे व्यक्तियों की वजह से ना पूरा एक समुदाय, देखिए मीडिया को, पत्रकार को चौथा स्तंभ माना गया है, तो इनको थोड़ा इस चीज़ पे ना ध्यान देना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जैसे उस एक अखोती समाज सेवी की थोड़े दिन पुरानी एक वीडियो है, उसने सारी जगह वो वीडियो वायरल करी। इवन कि हमारे जो पुराने लॉटीज़ हैं, पुराने बिल्डर के लॉटीज़, उनके ग्रुप में भी पहुंचा दी गई इसी ललित गुप्ता के माध्यम से कि जी इनका प्रोजेक्ट तो 6 मंजिल पास था, इन्होंने 8 मंजिल बना दिया, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। उसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। ये मेरे पास सारे ओरिजिनल मैप्स पड़े हैं, मेरे ये ओरिजिनल मैप्स हैं, आप देख सकते हैं कितने मंजिल पास हैं, क्या है। मतलब अगर इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि या तो आप लोग करवा दीजिए, मुझे बताइए कैसे होगी। कि बिल्कुल निराधार हमारे प्रोजेक्ट पूरा पास है, सब कुछ पूरा पास है, पर लोगों को एक पैनिक क्रिएट कर दो कि एक बिल्डर पहले ही फंसा हुआ है। फंसा इन द सेंस कि उसको नहीं पता था कि यहाँ पे क्या कुछ होगा, उसने पैसे लगा दिए, काम करना शुरू कर दिया। और जो लोगों को 10 साल से घर नहीं मिले, हमारे पास लिटरली लोग आते हैं जिन्होंने पुराने बिल्डर से फ्लैट लिया, किसी भी वजह से उनका आपस में नहीं बन पाया, वो रुक गया, वो प्रोजेक्ट बैंक ने अपने सरफासी में, अपने अंडर पोजीशन में ले लिया। बैंक का गार्ड होता था, बैंक का गार्ड उनको अंदर भी नहीं जाने देता था। देखिए बैंक के गार्ड की ड्यूटी है, वो परेशान होते थे। हमारे पास आए, हमारे को मिले, उन्होंने हमारे को लिटरली आंखों में उनके आंसू थे कि भाई साहब आपकी वजह से हमारा जो 10 साल पुराना सपना था ना, वो साकार होगा, और आपकी वजह से आज हम अंदर बैठ के ना बैठे हैं और चाय पी रहे हैं और हमें अपना घर मिलने की अब सपना जो है ना वो साकार होता दिख रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, पर ये जो ललित गुप्ता और ये जो खोती समाज सेवी जैसे लोग हैं ना, ये उनको भड़काएंगे, उनको और परेशान करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि जो भी पुराने लॉटीज़ हैं रॉयल अपार्टमेंट के, मैं उन सबको फ्लैट देने के लिए जा रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उनका एज पर एग्रीमेंट है उस हिसाब से देने को तैयार है। किसी ने नहीं लेना, अपने पैसे वापस लेने, अपने पैसे वापस ले लो, हम उसमें भी तैयार है। हमें किसी तरह की कोई लिटिगेशन नहीं करनी। बड़े लोग र्यूमर क्रिएट करते हैं, अननेसेसरी हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं ऐड के नाम पर। ब्लैकमेलिंग में आपका कितने का नुकसान हो चुका होगा अभी तक? मैं इसका तो देखिए कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि क्लाइंट भी इस चीज़ से नेगेटिव तो होता ही है। देखिए क्लाइंट का तो ऐसा है कि हमने कोई नया क्लाइंट तो अभी नहीं बनाया, क्योंकि हमारा रेरा नंबर अभी आना है। जो पुराने लोग वेट कर रहे हैं, जिनको हम घर दे सकते थे जल्दी, जब हमें परमिशंस नहीं मिली तो हमारी हर चीज़ डिलेड है। पर मैं एक चीज़ ये जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा प्रोजेक्ट 1 साल डिलेड है आज की डेट में। अब इसके बाद जो जितना टाइम लगेगा वो अलग लगेगा, नहीं तो मैं 1 साल पहले भी लोगों को घर देख के और अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के कोई और काम करता, और काम से सरकार को रेवेन्यू आता, और मैं फीसिस देता, कुछ भी वो सरकार के पास ही। ये सरकारी तंत्र का नुकसान कर रहे हैं लोग। ये पूरी बिल्डर लॉबी को परेशान किया जा रहा है। सारे बिल्डर्स परेशान हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ अंदर खाते परेशान, पर परेशान सभी हैं, जानबूझ करके। बिल्कुल जानबूझ के। एक ही रोड पर 3 प्रोजेक्ट हैं, तीनों में ही गलती होगी, एक में तो नहीं होगी। अगर कहीं गलती है तो तीनों में होगी। वो 2 कैसे ठीक हो सकते हैं और वो 1 कैसे गलत हो सकता है? और खबरें उसकी भी वही अखोती समाज से भी पहले भी लगा रहा है, पहले उसको कंप्लेंट्स दे रहा है, पर जब उसकी सेटलमेंट हो जाती है वो खत्म हो जाती हैं। वो बिल्डर की मजबूरी है करना, पर अगर कोई बिल्डर खड़ा होता है, मेरे हिसाब से तो हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं।
और अननेसेसरी ब्लैकमेल करके अपने घर भर रहे हैं, वो असल में सरकारी तंत्र को नुकसान कर रहे हैं। कंप्लेंट वगैरह उस बिल्डर के उस समाज सेवी के खिलाफ हो कि वो आपने या कहीं पर प्रशासन से गुहार लगाई हो? समाज सेवी के खिलाफ तो ऑलरेडी एक विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी, वो शायद रुक गई है या जो भी हुआ है वो पता नहीं, रुकी हुई है क्योंकि चली थी। ये जो ब्लैकमेलर हमारा जो पुराना अलॉटी इसके साथ मिला हमारे पुराने बिल्डर का, इसके खिलाफ मैंने हर जगह कंप्लेंट दे रखी है। ये मेरे पास कंप्लेंट्स की कॉपीज हैं जी। और लास्ट हमारी इस कंप्लेंट के संदर्भ में एक मीटिंग भी हुई थी डीसी ऑफिस में, जहां पे ये सर डायरेक्टर लोकल बॉडी को दी गई है, ये सेक्रेटरी लोकल बॉडी को दी गई है, ये ईओ साहब को दी गई है, ये मंत्री साहब को दी गई है लोकल बॉडी में, और एक डीसी साहब को भी दी गई है। डीसी साहब को जो कंप्लेंट दी थी वो सीएमएफओ साहब को मार्क हुई थी। उसके बाद एक हमारी मीटिंग भी हुई थी जिसमें हमारी 1-to-1 मीटिंग हुई थी, जिसमें अधिकारी भी शामिल थे, और वहाँ पे हमारी पूरी बात सुन के हमारे को यही कहा गया था कि हमें बात समझ में आ गई है, बस आपके किसी भी तरह के किसी भी कार्य में कोई गलती ना हो, अगर है तो आप उसको ठीक कीजिए। तो हमने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिए थे कि हमारी कोई गलती नहीं है, बोलिए आप अपना काम कीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति को अपने आज की डेट में इस व्यक्ति को अपने फ्लैट से मतलब नहीं है, इसे बिल्डर को ब्लैकमेल करके अपने पैसे लेने हैं। और अगर फ्लैट से मतलब है फ्लैट देने को तो हम कल भी तैयार थे और हम आज भी तैयार हैं, पर हम ये नहीं है कि हम तेरे को फ्री में फ्लैट दे देंगे, फ्री में नहीं कुछ भी देंगे। थैंक यू सो मच रॉबिन जी, इदम टुडे न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। और जैसा कि आपने देखा सुना कि रॉबिन जी ने बखूबी बेहद क्लियर इन्होंने एक क्लीन चिट, जिस तरह से कहा जाता है कि एक अखौती समाज सेवी के द्वारा ये किस तरीके से परेशान हुए हैं और इन्होंने कहाँ कहाँ कंप्लेंट की है, किस किस के खिलाफ, ये सारी बातें इदम टुडे न्यूज़ के चैनल पर रखी है, सामने रखी है। अब इसमें आने वाले टाइम में क्या मोड़ आता है वो भी हम आपको खबर दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जीरकपुर से प्रिया शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हेलो सुखदेव चौधरी जी, मैं अमर शर्मा बात कर रहा हूँ, पत्रकार। हाँ जी। सुखदेव चौधरी जी, आज एक रॉबिन जी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रॉबिन कौन है ये सर बिल्डर हैं। किस चीज के बिल्डर बताइए? सर ये फ्लैट बनाते हैं। एक सेकंड, मैं ना एक बार रिकॉर्डिंग पे लगा लूं सर ना। जी बिल्कुल। This call is now being recorded. हाँ जी सर, आप बताइए जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है रॉबिन ने। हाँ जी। और रॉबिन ये क्या कह रहा है आपको, क्या चीज है वो? ये बिल्डर हैं सर। कोई बिल्डर का क्या, कौन सी कंपनी के? बिल्डर तो है ही नहीं है सर, इन्होंने बिल्डर ही बताया है कॉन्फ्रेंस में। ये बिल्डर नहीं है। अच्छा चलो सर बताइए। तो सर इन्होंने आरोप लगाया है कि आप और ललित गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया है कि दोनों मिलकर मुझे काफी दिनों से ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये पहली बात तो ये बिल्डर नहीं है जी, बिल्डर है ही नहीं, तो ये आरोप लगाना। उसने, ललित ने इनसे 2 फ्लैट लिए हुए हैं, उनका केस चल रहा है 12 साल से। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए हुए हैं, उनके पास सारे पेपर हैं। ये टोटली फ्रॉड कर रहा है, इसने सारा फ्रॉड, केस का सारा फ्रॉड अब सामने आ रहा है। जी जी जी। इस मामले पे आपका भी नाम लिया गया है कि एक समाज सेवी हैं 2 साल चौधरी जी। 2018 में इसको मिला था, उसके बाद कभी मिला ही नहीं। जी, तो इस पे आपका क्या कहना है सर, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं? ये फ्रॉड है सारा, कोई सब इसमें ये निराधार है आरोप, ये फ्रॉड है जी। और ललित जो है, ललित से पूछो, ललित के बारे में ललित बताएगा। मैं हेलो, हाँ जी। ललित गुप्ता जी। जी भाई साहब। नमस्कार ललित गुप्ता जी, मैं अमर शर्मा बात कर रहा हूँ, पत्रकार। जी भाई साहब। सर आज एक रॉबिन नाम के व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अच्छा जी। उसमें आरोप लगाया है जी, फ्लैट के नाम पर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपने काफी गलत शिकायतें दी है, इस तरह के कई आरोप, गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर। इस पे अच्छा आपका जी, क्या कहना है सर? ऐसा है जी। उसने तो एक वर्बली तौर पे एक रिकॉर्डिंग दिखाई होगी आपको। जी जी, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जी क्या, सुनिए जी। उसको ये पूछो भाई, तेरे पास इस रिकॉर्डिंग के अलावा उसके कितनी बार बात हुई है? तेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है? जब तू एक बार की रिकॉर्ड कर सकता है तो उसके पास परमानेंट ही रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। जी ठीक है जी, उससे पूछ। और भी तो रिकॉर्डिंग होगी सारी पिछली। दूसरी बात, ये तेरी कॉल कब की है, कौन सी डेट की है, वो चेक करो। इसके अलावा उसने ब्लैकमेल तो मेरे को कर दिया जी, मेरे नाम से झूठे एफिडेविट दे के अपने सारे काम करवा लिए। जी, आपको पता है झूठे एफिडेविट का? जी वो बात तो उन्होंने नहीं कही है। नहीं कही, वो क्यों कहेगा जी? सिर्फ एक, सुनिए मेरी बात जी। वो जितने भी अलॉटी हैं, जितने भी अलॉटी हैं, या तो उसकी कहने से चल लो, जी। ठीक है जी, या तो उसके कहने पे चलो, नहीं तो
सबके बारे में कोर्टों में ये मेरे को 5 लाख रुपए मांग रहा है, ये मेरे को 2 लाख मांग रहा है, ये मेरे को 5 लाख मांग रहा है। इसके अलावा जी, जैसे इसने मेरे साथ समझौता किया, वो समझौते की कॉपी भी उन्होंने हमें दी है। ठीक है, हाँ, इसमें वो सही है, इसमें कुछ दो राय नहीं है जी, उसी समझौते की वो 22 तारीख को हुई थी जी, 22 तो इलावा 27 को उसने वो एफिडेविट सुनिए, 27/2/2023 को 100 रुपए के उसने स्टाम्प खरीदे। जी, उसने 27 तारीख को ही उसने वो साइट टाइप करवा लिए। 27 तारीख को ही उसने टाइप करवाने के बाद नोटेरी करा लिए। 27 तारीख को ही ईओ से मिलकर 27 तारीख को ही ईओ ऑफिस से वो रिपोर्ट बनवा ली। 27 तारीख को ही सेम डेट में जी, ये तो एक 2 साल नहीं रिकॉर्ड देता, इसका तो साथ की साथ रिपोर्ट बना करके लोकल बॉडी ऑफिस में सबमिट करके इसने नक्शे पास करवा लिए। जी, ये कह के कि मेरा ललित से समझौता हो गया, सेम डेट में 27 को मुझे ये पता लग गया इसकी आंख में किरकिरी है। जी, तो मैंने 27 तारीख को ही एसएसपी ऑफिस में, जहां मेरा ये कंप्रोमाइज डीएसपी हेडक्वार्टर में कराया, वहां मैंने लेटर दिया। मैं क्या जनाब, या तो मेरा इस समझौते पे पूरा कराओ, नहीं तो इसको रद्द किया जाए। जी, बिल्कुल, 27 तारीख को ही डीजीपी के मैंने दे रखे, मेरे पास डायरी नंबर हैं, जी, ये रिकॉर्डिंग दे रहा है। ये इसके अलावा सुनिए, मैं आपके इसके 6 एग्रीमेंट दिखा दूं, किसी पे ये पूरा नहीं उतरा। इसने तो अपना सगा मामा तरसेम सिंगला नहीं बख्शा जी, वो वैसा है। ये प्रोजेक्ट किसने लिया था? तरसेम सिंगला ने, उसका एग्रीमेंट की कॉपी है मेरे पास। जी, ठीक है जी, जी, वो तरसेम सिंगला का एग्रीमेंट को आप चेक करो, सारा उसमें सारा टोटल चीज लिखी हुई है। ठीक है जी, जी, तरसेम सिंगला को बाईपास करके अपनी कंपनी खोल करके उसी के पैसे से ये ट्रांसफर करवा ली। ये तो ऐसा है जी। सुनो जी, मैं एक बात कहता हूँ, मैं ब्लैकमेल करता हूँ या वो ब्लैकमेल करता है, किसने क्या किया क्या नहीं। एक बात सुनिए शर्मा जी, आप समझदार आदमी हो। जी सर, जी, ब्लैकमेल करने वाला आदमी जांच की मांग करेगा। मैं तो जांच की कर रहा हूँ, मैं तो फ्लैट की, पैसे की, किसी चीज की बात ही नहीं करता। जी, जांच वाला आदमी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ इसकी हाई पावर ईडी से करवा लो, दिल्ली से। मैंने वहां भी लेटर लिखा है जी। इन्होंने आरोप ये लगाया है कि एक समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुखदेव चौधरी, उनके साथ मिलकर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं इन्हें। बाबूजी सुनिए मेरी बात जी, वो किसी की मतलब मेरी बात सुनो जी, सुखदेव को मेरा उससे कोई लिंक नहीं है ना, मेरी कोई वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो समाज सेवी है, जो भी है जी, वो प्रॉपर्टी डीलर है। ट्राई सिटी प्लाजा में उसका ऑफिस है। प्रॉपर्टी में रेट वगैरह पूछता था, आज तक मेरी उसकी कोई डील नहीं हुई जी। चलते फिरते हर आदमी, सुनिए मेरी बात, सुखदेव चौधरी ब्लैक, वो तो कल को मेरे बेटे का नाम दे देगा, बेटे के साथ मिलकर ब्लैक, सुनिए मेरी बात जी, जी, वो कम दूसरे पे लांछन लगाने वाला आदमी, उसके सगे मामे पे पूछ लो ना। सारा दूर क्यों जा रहे हो जनाब? एक बात कॉन्फ्रेंस पे साथ ही बैठे थे उनके मामा जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उनके मामे जी? जी, उन्होंने कौन से मामा जी? मामा जी हैं। कौन से? ऐसा है मामे तो ऐसा जी, चलते चलते मैं मामा जी ने कह दूं, मैं आपके उनके मामा जी का नंबर दूं, रियल जो मामा जी हैं उनके, तरसेम सिंगला लुधियाना वाले जी। शर्मा जी, आपको दरअसल उसने एक्चुअल में क्या है, आज मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,